Hello everyone, my name is Rashi Singh. I have done my master's in applied microbiology and biotechnology, and I have written mains twice with a anthropology as an optional. Today we are going to discuss the syllabus of MPPSC for the subject environment and science and tech. So if we talk about the science and tech and environment, the question will going to ask you in both the things like आपका both the patterns like आपका prelims maybe and आपका mains maybe. For prelims, if we talk about so some 15 to 20 questions will be going to ask you from the portion of science and tech and environment. General science रहता है आपका basically and general environment के topics रहेंगे something in current even something with the static portion also. Like if we talk about the MPPSC mains, then this science and technology portion will be covered in the आपका general studies section, general studies paper third, and there the question will ask you from both the perspective. They can ask you something related to the static portion also, something related to the current events also, which is going to be like in your current scenario. Your daily news में जो भी आपके topics रहेंगे, they both can be you can encounter in the question in the exam, both in the prelims and in the mains also. सो एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट आपका ये टॉपिक आपका इस तरीके से कंप्राइजिंग इन बोथ एनवायरनमेंट और जनरल साइंस यहाँ पे अलग अलग नहीं किया गया है. बोथ आर द थिंग्स यू विल फाइंड इन द टुगेदर. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द एमपीपीएससी के सिलेबस को हाउ वी आर गोइंग टू कवर या फिर कौन कौन सी जो सोर्सेज रहेंगे बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर थ्रू देम. तो दीज आर द बेसिकली अगर हम बात करें तो दीज आर बेसिकली दे आर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 6 to 12th. बेसिकली अगर 12th की मैं बात करूं तो सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री माइट दे कैन आस्क यू, बट मोर स्पेसिफिकली दे कैन आस्क यू फ्रॉम द आपका 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की साइंस की जितनी भी बुक्स हैं, बायोलॉजी की हैं स्पेसिफिकली, वो आप करेंगे. देन कंप्यूटर साइंस आपका करंट अफेयर्स जो आप करेंगे मोस्टली वो आपकी ल्यूसेंट कंप्यूटर की बुक है, वहां से कर सकते हैं. हेल्थ वगैरह के करंट इवेंट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स मैगजीन से हम करेंगे. स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस टेस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट व्हाट दे हैव लाइक इन्वेंटेड, व्हाट दे हैव लाइक फाउंड, these are the things we can cover from the Lucent की बुक से कंप्लीट करेंगे. करंट इवेंट्स इन द न्यूज, राज्यसभा टीवी एंड द पीवाईक्यूज ऑफ द प्रीवियस ईयर. एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंट जो है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है लास्ट बायोलॉजी की, that we going to cover the last 4 chapter. These are specifically belongs to the environment section only. वो हम वहां से खत्म करेंगे. Then we'll cover the disaster management, एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, प्रीवाईक्यूज आपके वहां से. Then शंकर आईएएस बुक specifically for the environment. माजिद हुसैन बुक जो आपकी है, कुछ टॉपिक्स इसमें आपके basically this book is for the geography only, but some of the topics you can find the environment also, which we need to cover. Geology from the geography NCERT 11th class book. Then if we talk about the previous year analysis of the question papers, then we talk about some of the topics they have more frequently asked in the previous year questions. So these are the basic principle of the science. Ki suppose ki bhai, what is the simple question, like they are going to ask you what is called as a bodybuilding food. So we all know ki bodybuilding food is like belongs to that the protein background. Any food which is like having a high amount of protein, that is called as a bodybuilding food. Suppose आपका energy giving food, तो fats are the one. Then fats के बाद में आपका secondary अगर नाम suppose fats नहीं है option में, तो option the आपके carbohydrates हो जाएंगे, वो आपके correct हो जाएगा option. तो such kind of like the basic, the static portion of the science there. So this is called the basic principles of science. इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बनी क्या है, कौन उनका हेड होता है, व्हाट इन विच फील्ड दे आर वर्किंग विद, सैटेलाइट्स के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली हमारा बायोडाइवर्सिटी से बिलोंग करता है कि भाई कितनी बायोडाइवर्सिटी कैसी, कैसे द सिस्टम इज रनिंग बिहाइंड, दैट इज द वन. देन द ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन एंड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, जीएमओ प्रोडक्ट्स आपने सुने, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रीन रेवोल्यूशंस के टाइम पे कौन कौन से आपके स्ट्रेन्स हो गए, डिफरेंट फूड्स हो गए, डिफरेंट फूड्स स्पीशीज हो गए जिन लोगों को यहाँ पे क्या करे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया. तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे जितनी भी चीजें आपकी हो गई. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आपकी फूड क्रॉप्स आ जाती हैं, आपकी कमर्शियल क्रॉप्स आ जाती हैं. देन हेल्थ पॉलिसीज कौन कौन सी है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज इस टाइम पे प्रोग्राम्स चला रखे हैं. Pollution, natural disaster management, these will be going to cover in the environmental section.
अब how we will going to divide inside for this syllabus, that is the one we divided into the 3 units, unit 1, unit 2 and unit 3. तो basically अगर हम बात करें तो आपकी जो first unit है ये आपकी क्या रहेगी, mostly आपकी belongs to the physics portion, second unit belongs to your आपका chemistry portion, and the third portion is of the biology one. Biology के साथ ही में हम यहाँ पे environment, pollution, disaster management, everything we are going to cover together with this. Then if we're going to talk about the today's topic, so today's topic, to make it cut short for a slide, I have taken the topic from the previous year only. This is the question which they have asked you last year. Sorry, not last year, this was in 2017, I think. Yeah, this was in 2016. ठीक है, तो दिस वाज दे हैव आस्क्ड इन द 2016 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था. अब 2000 से सॉरी, अगर हम मेंस की बात करें तो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो होता है वो आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, देन 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं. तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपका है, सम 15 क्वेश्चन यू नीड टू कवर, तो इसका अगर आप मार्क्स कंटेंट देखें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 15 क्वेश्चन यू नीड टू कवर फ्रॉम दीज टॉपिक्स. तो दीज आर द सर्टेन आपके वन लाइनर्स होते हैं. बेसिकली वन लाइनर्स नहीं बोलोगे, छोटे से डेफिनेशंस दे हैव आस्क्ड यू. सिमिलरली इफ दे आस्क यू फॉर, यहाँ पे आपको मुश्किल से 2 से 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है. एंड इफ दे आस्क यू द क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम आपको 100 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद जब 15 वर्ड्स का पूछेंगे तो 15 वर्ड का डिफाइन वाला टॉपिक आ जाता है, तो उसको आपको कम से कम 300 वर्ड्स में आपको उसे कंप्लीट करना पड़ता है. 200 से 300 आप मान लीजिए. तो दिस इज अ वन कि हमको इस तरीके से टॉपिक करना है. तो आई हैव टेकन दिस टॉपिक व्हिच दे हैव आस्क्ड यू इन द मेंस ऑफ 2016. तो तीनों ही तरीके को आप किस तरीके से डिफाइन करना शुरू करेंगे. तो आई एम गोइंग टू टेक यू दिस आंसर राइटिंग टुगेदर विद द टॉपिक डेफिनेशन एंड द आपकी टॉपिक के बारे में आप क्या जान सकते हैं. सो दे हैव आस्क्ड कि भाई अनिषेकेश के जनन क्या होता है, अनिकेश जनन क्या होता है. दैट इज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज अ पार्थिनोजेनेसिस. तो अब हाउ यू गोइंग टू आंसर दिस. अभी 2 या 3 लाइन के आंसर आपको देने हैं, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट राइट मोर. अब पार्थिनोजेनेसिस में बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है, यू कैन elaborate this in the 200 words even, but we need to focus over ki how many questions maximum we can like cover. तो for that you need to focus on कि आपको वर्ड लिमिट्स को स्टिक करना है, तब आपको बढ़ना है. जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको बस उतना ही डिफाइन करना है. लाइक दे हैव आस्क्ड यू आंसर इन 1 or 2 sentences of the following. तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें 4 लाइनें 10 लेकर आप लाइनें लिख कर आएंगे तो you will get the more marks. You will not get the more marks. You will get the marks only 3. ठीक है, do not exceed the marks कि भाई नहीं 6 मार्क्स इसी में मिल जाना है. आपको ये देखना है कि अगर 15 क्वेश्चन उन्होंने बोले हैं, सम ऑप्शंस दे आल्सो गिवन यू, तो उसमें से आपको 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने, भले यू आर राइटिंग अ 1 लाइन, इवन दे इवन मेंशन यू 1 लाइन या 2 लाइंस, बिकॉज दे आल्सो नो कि भाई वर्ड लिमिट आपको मेंशन करनी है एंड वर्ड लिमिट के साथ आपको टाइम मेंटेन करना है, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर एग्जाम पेपर एज पर द टाइम. सो पार्थिनोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें, see I have defined this topic over here in the very varied manner because I just need to tell you कि अगर ये आपका 3 मार्क्स में आता है तो simple definition will be the one. If they ask you in the 6 marks, then also you can elaborate this topic in a such a way. So like parthenogenesis होता क्या है. तो if we talk about this simple word genesis, दिस इज आपका साइंस का टॉपिक लिया जाएगा. अगर ये आपका पूछा जाता है कि सपोज इफ द प्रीलिम्स क्वेश्चन कम ऑन द सेम टॉपिक, तो क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स ब्रीडिंग. फॉल्स ब्रीडिंग, तो फॉल्स ब्रीडिंग को आपको 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे कि फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट फॉर्मेशन है, पार्थिनोजेनेसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फॉल्स ब्रीडिंग या फॉल्स रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन और गेमीट्स क्या बोला जाता है. तो पर्टिकुलर द आंसर इज पार्थेनोजेनेसिस. तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या, किसी भी चीज का जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म समथिंग. पार्थिनो मतलब होता है कोई भी चीज फॉल्स, ठीक है, कि भाई फॉल्स जेनेसिस टू प्रोड्यूस समथिंग. तो अभी यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है या कोई भी एक न्यू जनरेशन या फिर आप कह सकते हो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस. तो सिंपल डेफिनेशन इफ विल गो अराउंड, तो it's a kind of a asexual reproduction. It's a kind of a asexual reproduction.
अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो क्या होता है, चलिए पहले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which a parent is able to produce a baby or a offspring of their own kind, अपने तरीके के, या फिर कोई भी स्पीशीज अपनी ही तरीके का कोई भी न्यू जनरेशन या न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितना टाइप्स? टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज लाइक कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि जिसमें ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, only a single parent is involved, that is called as a asexual reproduction। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे आपका क्या होता है, देयर आर हेट्रो पेरेंट्स। हेट्रो मतलब देयर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें आपका एक मेल होता है और एक आपके फीमेल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे आपको सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड बाय देमसेल्फ। Sexual reproduction in which the single parent is not involved, two parents are need to produce a new offsprings। ऑस्प्रिंग्स का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल बेबी होता है। देन अगर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आपने 9th-10th में आई थिंक इन 9th-10th आई थिंक, तो यू हैव स्टडीड अबाउट द वर्ड इज कॉल्ड अमीबा, ठीक है। दैट स्पीशीज आप कह सकते हो, दिस इज अ सिंगल सेल्ड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो इसको बोला जाता है अमीबा। तो ये अमीबा क्या करता है? अमीबा क्या करता है, इट स्टार्टेड डिवाइडिंग इटसेल्फ, ठीक है, इट स्टार्टेड डिवाइडिंग इटसेल्फ। ये बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या? बाइनरी मतलब इन टू पार्ट्स, इट डिवाइड इटसेल्फ इन द टू पार्ट्स, कि अपने ही तरीके जब इसके न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो दे डिवाइड। अब जैसे क्या होता है कि इट स्टार्टेड ग्रोइंग, इट्स ईटिंग, इट स्टार्टेड ग्रोइंग इट्स साइज। जब इसका साइज पर्टिकुलर साइज तक बड़ा हो जाता है दैट देन इट्स डिवाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये अपने आप को हाफ न्यूक्लियस और हाफ बॉडी के साइटोप्लाज्म और अपनी जितनी भी इसकी आउटर लेयर मेम्ब्रेन होती है उसको डिवाइड कर लेता है। डिवाइड होने के बाद ये अपने ही तरीके के दो बेबीज बनाता है। कैसे? कि इसके सेंटर में आधा न्यूक्लियस इसके पास आ गया, आधा न्यूक्लियस इसके पास आ गया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिशन। अगर हम ये बोलेंगे तो सिंपल काइंड ऑफ आप कह सकते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोन। क्लोन जिनका डीएनए मटेरियल सेम होगा, जिनका मोर्फोलॉजी सेम होगी, जिनकी आपकी जेनेटिकोलॉजी सब सेम होगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय which a impregnator मतलब जो एक पेरेंट है, resulting into the production of a zygote from a unfertilized egg। जाइगोट क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं अपना जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई हैव सेड कि भाई वन मेल पेरेंट इज इन्वॉल्व, वन फीमेल पेरेंट इज इन्वॉल्व। वन मेल पेरेंट क्या करता है? अपने ही तरीके का एक स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको हम गेमीट बोलते हैं, जिसको मेल गेमीट भी बोला जाता है। सिमिलरली फीमेल क्या करेगी? फीमेल अपना एक गेमीट प्रोड्यूस करेगी जिसको बोल दिया गया एग, बोल दिया गया, ठीक है। वो आपका स्पर्म था, ये आपका एग था। तो स्पर्म और एग आपने प्रोड्यूस किया। अब क्या हुआ कि व्हेन दीज गेमीट्स, जब ये अपने इंडिविजुअल अपने हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, हैप्लॉइड मतलब सिंगल फॉर्म में होते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है? इनको गेमीट्स बोला जाता है। व्हेन दिस गेमीट्स मीट, जब ये आपस में मीट होते हैं और ये फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे आर स्टार्टेड कॉपीइंग देयर डीएनए, तब ये क्या बना देता है? जाइगोट फॉर्मेशन कर देता है। ये जो आपका मेल और ये फीमेल यहाँ पे फॉर्म होगा, तब आपका जाइगोट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। दिस जाइगोट व्हेन इट स्टार्टेड ग्रोइंग, तभी आपका एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो मतलब व्हेन इट स्टार्टेड लाइक डिवाइडिंग इटसेल्फ, अपनी बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट बनाना शुरू कर देता है। जब ये बॉडी के अंदर होता है तब ये एम्ब्रियो, या उसे बोल सकते हो तो हम इसे फीटस कहना शुरू करते हैं, ठीक है। देन एम्ब्रियो, देन आपका बेबी बाहर आ जाता है। देन अगर हम इसकी बात करें कि पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो इम्प्रेग्नेटर हो, जो प्रेग्नेंट आपका पार्ट होता है, किसी भी प्लांट कह सकते हो या एनिमल कह सकते हो, ठीक है। दिस पार्थेनोजेनेसिस कैन फाइंड इन एनिमल्स ऑल्सो एज वेल एज इन प्लांट्स ऑल्सो। तो सिंगल पेरेंट इधर इज द फीमेल ओवरी आप कह सकते हो ऑफ द प्लांट कह सकते हो, या फिर सिंगल आप पेरेंट ऑफ animals belongs to, they produce a zygote। zygote क्यों बनेगा? क्योंकि zygote is a basis of formation of any kind of a body। तो zygote यहाँ पे प्रोडक्शन दे इन्वॉल्व इन द
प्रोडक्शन ऑफ अ जाइगोट फ्रॉम अ अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बोला कि जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने अपने गेमीट्स को यहाँ पे क्या हुआ मिक्स किया, तो ये जो जाइगोट बना, तब जाइगोट बना क्योंकि यहाँ पे गेमीट्स का फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज मतलब दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाना, ठीक है, एक दूसरे को फर्टिलाइज करना, तो वो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज सेकेंड पेरेंट वॉज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग दिस जाइगोट। इसलिए बोला गया कि प्रोडक्शन होता है जाइगोट का फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे हो जाएगा। Thus, it is also referred to as many by the virgin birth. इसको इसीलिए virgin birth भी बोला जाता है। Parthenogenesis takes place in the both asexual animals and plants. यहाँ पे क्या बोला गया? Asexual animals and plants. Asexual मतलब single parent. They are not having a similarly kind of a like male counterpart. They are having a न्यूट्रल कह सकते हो आप एक तरीके से इसको, दे आर नॉट फीमेल, दे आर नॉट मेल, दे कैन जस्ट जनरली प्रोड्यूस। अभी आपने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में सुना होगा, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हाउ मच, लाइक सपोज आपके जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में क्या होता है कि भाई हाउ यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सा जो बेबी होगा वो विच इज लाइक मेल एंड फीमेल। हमारे यहाँ तो जेनेटिकली डिसाइड हो जाता है कि व्हेन द बेबी इज इन द वोम, ठीक है, कि भाई एक्स एक्स अगर आपका है तो फीमेल विल बी द वन, एक्स वाई है तो आपका मेल हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ लाइक अगर बर्ड्स की बात करें तो how much the amount of heat it is providing to that egg, that bird, then its temperature decide कि whether it will be a male or a female. Similarly यहाँ पे भी आपका इसी तरीके से कुछ reproductions होते हैं। In animals embryo develops to form a unfertilized egg. यहाँ पे क्या होगा, आपका egg जो आपका बनेगा या zygote जो आपका बन रहा है, zygote से जो baby आपका बन रहा है, that is from the आपका unfertilized egg से आपका बना हुआ है। इसी प्रोसेस को formation of a embryo, formation of a zygote from the unfertilized egg, this process is also called as apomixis. The parthenogenesis occurs many types of invertebrates. Invertebrates में तो vertebrates invertebrates में अगर मैं difference अगर आपको बताऊं तो क्या होगा, vertebrates जिनकी backbone होती है, invertebrates जिनके पास backbone नहीं होती, simple definition, ठीक है, including the scorpions, nematodes, mites, water fleas, wasp हो गए, some bees and the other insects also. मतलब ये आपके invertebrates में पाए, मतलब lower region के लोग उसमें animal species में पाया जाएगा, higher species में नहीं पाया जाएगा, who are having a different kind of body structures like us, like heavy animals या higher animals, उनमें नहीं होगा। तो parthenogenesis may occur in some of the vertebrates animals as well, such as amphibians and some of the fish and reptiles and few bird species also. तो यहाँ पे आपका पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे खत्म होता है। पार्थेनोजेनेसिस वाज अ टॉपिक व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, एंड दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द 2016 के मेंस में ये चीज पूछी गई थी। तो सिमिलरली अगर दे हैव आस्क्ड यू कि भाई दिस क्वेश्चन इन द वन लाइनर इन द सेंस कि आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अगर ये आता है तो दिस मच इज द इनफ for this answer कि a form of asexual reproduction by the self impregnator resulting into the production of a zygote from a unfertilized egg। अगर ये डेफिनेशन आपको थोड़ी हैवी लगती है तो इसी को मैं थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ। इसको इजी आप कैसे कर सकते हो, पार्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज या प्रोड्यूसिंग देयर स्पीशीज बाय देयर ओन काइंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, बिकॉज कुछ टाइम पे आपका क्या होता है, सपोज इफ आई एम राइटिंग सम काइंड ऑफ लाइक डेफिनेशन, तो दैट डेफिनेशन यू कैन फाइंड दैट इन द सम कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, द पीपल बिलोंग्स टू द डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइक फ्रॉम द आर्ट्स, इवन फ्रॉम द कॉमर्स, इवन फ्रॉम द साइंस। फॉर द साइंस पीपल इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड राइट दिस इन द एग्जाम, बट इफ यू आर नॉट एबल टू remind that these terms, suppose the self impregnator is not an easy term to remember, तो if this is a problem for you तो make it simple, because आपको मीनिंग समझ आ गया कि पार्थेनोजेनेसिस के फॉल्स आप कह सकते हो कि एक तरीके से फॉल्स जेनेसिस ऑफ अ रिप्रोडक्टिव बॉडी आप या फिर कह सकते हो या एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स कह सकते हो। तो प्रोड्यूसिंग द सिमिलर ओन काइंड ऑफ लाइक स्पीशीज विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन यू कैन पुट आउट। Then some kind of example you can give by some kind of like this is fine in the some invertebrates, that is like the scorpion, nematodes, etc. This is the one, this is very much I mean enough for the 3 marks question. So if we talk about कि अगर हमको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है then what will going to write it,
तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है, दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट सेक्शन, जो आपका करंट में भी था, एनवायरमेंट का स्टैटिक टॉपिक भी है, एंड आप इसको 6 मार्क्स और इसको आप 6 मार्क्स के साथ में आप इसको 15 मार्क्स से भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आई हैव राइटन इन द बोथ द वे, लाइक आई एम सॉरी, like this question were asked in 2017 मेंस में पूछा गया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे रखा था 100 वर्ड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि भाई इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई व्हाट आर द ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, सी इसीलिए हमको करंट अफेयर भी पढ़ना बहुत जरूरी है अलोंग विद आवर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में हमको ये पता चलेगा कि ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें करंट में क्या पता चलेगा कि what are the organization involving in the these green buildings कहाँ कहाँ बनाई जा रही, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाई पेड़ लगा दिया दिस हैज बिकम अ ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है, एक सिंपल सी अगर शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ग्रीन बिल्डिंग को हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन पेंट कर दिया देन इट बिकम अ ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन प्लांट्स लगा दिए देन इट बिकम अ ग्रीन बिल्डिंग, तो इट्स नॉट द वन, it's a one which is like releasing, I mean like suppose if we compare that today's nowadays buildings, abhi we don't have any kind of a like system to throw our waste, ठीक है, to for the water harvesting we don't have anything, the paints we are using in the buildings, these paints are like lead से बने हुए होते हैं, तो बाहर आउटडोर पोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन इंडोर पोल्यूशन these paints, this refrigerators, these kind of a thing, the air coolers, the ACs and all, they are also producing the harmful emissions, तो emission less buildings जो बनाई जा रही हैं which is like equipped with the every kind of a green technology which is called as a green building, अगर सिंपल शब्दों में हम इसको बात करें, इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल इफ यू हैव सीन द मुंबई एयरपोर्ट में यहाँ बहुत हद तक दे आर ट्राइंग टू, दे आर मैनेजिंग ऑल दोस थिंग्स, एंड वहां पे ऑक्सीजन भी आपका क्या रहे, बहुत ज्यादा अमाउंट में रहे, तो दे आर आई मीन दे आर मेकिंग दैट, जो एयरपोर्ट है आपका मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो आपका बना रखा है, दैट इज लाइक वो इसी की टाइप से डेवलप किया जा रहा है ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ग्रीन बिल्डिंग्स। तो ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू इन द मेंस ऑफ 2017, आई हैव मेक दैट इन द पोर्शन ऑफ, आपको इसको 15 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने इसको बनाया है, कैसे कि व्हाट आर द ग्रीन बिल्डिंग्स, डू यू थिंक, बिकॉज दिस वाज द टॉपिक जो आपका अभी करंट, अभी आपके आई हैव मेंशन्ड इवन इट वाज इन द न्यूज इन द 2020 फेब अगेन, ठीक है, एंड आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से नाउडेज आपको पता है कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं हमारे लिए, तो इस सिनेरियो के टाइम पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सपोज जैसे महाराष्ट्र में लेक पिंक हो गई थी, क्यों हो गई थी, हेलियोबैक्टीरिया था, क्या नहीं था, एवरीथिंग वी नीड टू स्टडी अबाउट, जितने भी पोर्शन हो जाते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आप ये देख रहे हो, इट्स नॉट स्पेसिफिकली दे हैव आस्क्ड, भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली वो आपसे स्टैटिक पोर्शन पूछ सकते हैं एमपी का कि भाई कहाँ पे क्या चीज ग्रोथ करी, बट यहाँ पे आपका स्पेसिफिक क्या रहेगा, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक रहेगा आपका करंट अफेयर्स में क्या पूछा जा रहा है अलोंग विद द स्टैटिक पोर्शन, यू ऑल्सो नो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है कि डू यू थिंक द इनोवेशंस इन द ग्रीन बिल्डिंग कैन हेल्प टू एड्रेस द कार्बन चैलेंज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन की और फॉर्म में बना दिया गया कि व्हाट आर ग्रीन बिल्डिंग्स, एक पोर्शन आपको आंसर करना है, सेकंड पोर्शन दे हैव गिवन यू, डू यू थिंक द इनोवेशंस इन द ग्रीन बिल्डिंग कैन हेल्प to address the carbon challenge and harness the opportunity for the sustainable development, because sustainable development is a very important thing which is like current in the current news। तो इसी को आपको 300 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, दैट्स आंसर विल बी ऑफ योर 15 मार्क्स क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आपको अगर आप आंसर इस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो कि भाई इट वाज इन न्यूज कि भाई ये तो खैर मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया है कि सो दैट यू कैन कम टू नो कि व्हाट आर द करंट सिनेरियो कि भाई ग्रीन बिल्डिंग्स क्यों जरूरी है, क्यों चल रही है इस टाइम पे, ये केवल आपको न्यूज के लिए है। आंसर आप लिखना शुरू करोगे द वे दे हैव आस्क्ड यू, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, व्हाट आर ग्रीन बिल्डिंग्स, तो ग्रीन बिल्डिंग्स आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, देन डू यू थिंक, अब आपका इंटरप्रिटेशन पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक कि ग्रीन बिल्डिंग्स कैन एक्चुअली
actually help you going to serve the purpose of like sustainable development, protecting environment or not, तब आपको यहाँ पे critically examine करना है इस portion को. यहाँ पे you have to give the critical examination. Critical examination जहाँ पे भी आ जाएगा, जहाँ पे भी आपसे आपकी राय पूछ ली, then you have to, what you need to do, you have to give the positive aspects also. If the negative is there, the negative portion you also have to mention. Then conclusion में आपको positive approach या outcome क्या रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा, या way forward आप कह सकते हो कि आगे इसके लिए क्या opportunity और हो सकती है. Some kind of like measurements which you can include in कि कोई चीज आप correct कर सकते हो, innovate कर सकते हो, that is the one. So that was a news in 2020 Feb again. The Bengaluru Smart City Limited BSCL has signed the memorandum of the CIS Indian Green Building Council IGBC to give the boost to the green buildings movements, the sustainable development, and facilitate the greening of the city as per the IGBC's Green Cities Rating System. ये क्या होता है, जितनी भी ग्रीन सिटीज है कितने तरीके से वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना कर रही है, उसके बेसिस पे इनको रेटिंग्स दी जाती है फॉर द सिटीज. लाइक आपने क्लीन सिटी मूवमेंट सुना होगा, तो जिस तरीके से अभी अंबिकापुर ऑफ छत्तीसगढ़ बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी. पहले यहाँ पे आपका मैसूर था, देन इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, तो दिस आर द वन. देन आपका क्या है कि अगर हम इसको आंसर को टारगेट करते हैं, तो आंसर को टारगेट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं कि भाई ये डिफाइन व्हाट इज ग्रीन बिल्डिंग, ये आपको केवल बताने के लिए मैंने लिखा है. ये पोर्शन आप, ये लाइन आप अलग कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू आंसर कि ग्रीन बिल्डिंग इज द वन व्हिच यूजेस लेस एनर्जी. ये डेफिनेशन बहुत आसानी से मैंने अपने हिसाब से बनाई है, वो आप देख सकते हैं. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप नीचे देखेंगे कि क्या होनी चाहिए, व्हिच इज लाइक गिविंग इन द डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ इंटरनेट. तो water and natural resources which creates the less waste and it is healthier for the people living inside compared to the standard building. We standard building जो हमारी आजकल की है, जहाँ पे सपोज अगर आपने किसी ने भी फॉरेन के कुछ मॉडल्स इस टाइप के देखे होंगे, अभी हमारे घर के बाहर तो क्या होता है, एनडीएमसी की रोज वो आती है, ठीक है, गाड़ी आती है कि भाई आपका क्या है कि भाई कूड़े वाला आया घर से कूड़ा, नहीं सॉरी कचरे वाला आया घर से कूड़ा निकाल टाइप वाली जो आती है, गाड़ी आती है उसमें आप कूड़ा फेंकते हो, ठीक है. बट अगर फॉरेन का मॉडल अगर आप देखो घरों का, तो क्या है, तो वहां पे दे पुट अ वेंट ओवर एवरी हाउस इन द बालकनी. व्हाट दे नीड टू डू कि उस वेंट में क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ अ लाइक द पोर्शन, वेट अ मिनट, yes, then what we need to do कि what kind of a standards to the standard building. Standard buildings की बात आपकी की गई है. I was talking about the foreign model. Foreign model में आपका क्या है कि आप कह सकते हो कि वहां पे दे पुट अ वेंट. वेंट में क्या रहता है कि दैट इज अ लाइक आपका ऑयल वेस्ट हो गया, आपका बायो वेस्ट हो गया, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, उसके लिए अलग अलग पोर्शन ऑफ वेंट्स बनाए गए हैं. व्हाट दे नीड टू डू फ्रॉम द एवरी बिल्डिंग, व्हाट दे यूज्ड टू डू कि सारा जो कचरा होता है वो वेंट्स में डाल दिया जाता है. द पीपल फ्रॉम द एनडीएमसीज टाइप ऑफ लाइक द म्युनिसिपैलिटी आप कह सकते हो, डिपार्टमेंट, दे यूज्ड टू कम, दे पुट द व्हीकल ओवर देयर, वेंट को ओपन करा जाता है, सारा पोर्शन अलग अलग जगह कलेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो वेस्ट कलेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्ट का सेग्रीगेशन वो वहीं पे एज अ पॉइंट सोर्स हो गया. आपको बाहर जाके यू डोंट नीड टू फोकस मोर ओवर द सेग्रीगेशन. तो इसमें क्या होता है, इजी हो जाता है उस वेस्ट को कलेक्ट करना, इजी हो जाता है उस वेस्ट को बायोडिग्रेड करना, रिसाइकिल करना, या फिर उसको आपको खत्म करना. So that is the one. So green building refers to both the structures and applications of the process. Are the environmentally responsible and resources efficient throughout the building life cycle? This is the definition from the internet I have taken, from the planning to design, the construction, operation, maintenance and renovation and demolition. तो हर तरीके से वो sustainable होनी चाहिए, ऐसे applications to make those buildings so that जो बिल्डिंग की लाइफ साइकिल है फ्रॉम प्लानिंग से लेके उसकी डिजाइनिंग से लेके उसकी ऑपरेशन से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके एवरीथिंग इन द सस्टेनेबल मैनर होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर हमने बोला कि मुझे 100 मार्क्स में ये चाहिए था, ठीक है, सॉरी 100 वर्ड्स में ये चाहिए था, एंड दैट इज लाइक द 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा, तो आपने इसकी डेफिनेशन दे दी, पहला पोर्शन हो गया. ठीक है, तो डेफिनेशन यू कैन चूज एनीवन, चाहे आप फर्स्ट डेफिनेशन ले सकते हो, चाहे आप सेकंड डेफिनेशन ले सकते हो. देन
द ग्रीन बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग, तब आपको वहां पे बताना है कि अब वो क्या काम करेगी, उसको ग्रीन बिल्डिंग क्यों कहा जा रहा है। कि भाई ग्रीन बिल्डिंग आपकी ऐसी बिल्डिंग होती है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो आपका क्या करेगी, दैट विल रिड्यूस और एलिमिनेट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट्स किस पे, ओवर आवर हेल्थ एंड ओवर द आपकी सोसाइटी, और आप कह सकते हो इन्वायरमेंट ऑल्सो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन आर क्लाइमेट ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग्स, अभी आपने ये सारी चीजें बता दी। अब उसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स में आपका क्या है कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, कि भाई आप यहाँ पे आई एम सो सॉरी। अब यहां तक आपने जो पोर्शन था ये आपके 100 वर्ड्स में हो गया, 100 वर्ड्स आपने खत्म कर दिए, यहाँ पे हो गया। अगर आपको और चीज इसमें कोई चीज मेंशन करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि व्हाट आर द आपकी क्या है कि व्हाट आर द सोसाइटीज या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन दिस मेकिंग ऑफ दिस ग्रीन बिल्डिंग जो आपका इवेंट जो आपका चल रहा है टू मेंटेन दैट। तो एक्सप्लेन द ग्रीन बिल्डिंग्स एंड कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द सस्टेनेबल गोल्स एंड एड्रेस द चैलेंज टू द वर्ल्ड। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको ये दो चीजें आप यहाँ पे और एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर वी स्टार्टेड लाइक इम्प्लीमेंटिंग दोज बिल्डिंग्स, हम इनको बनाना शुरू कर दे तो हमारे लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हमारे को क्या होंगे कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल, कि भाई हमारा क्या है कि भाई वी आर प्लानिंग टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ ऑल ओवर द ईयर, ग्लोबल टेम्परेचर बाय 2030 2 डिग्री, ठीक है, और 1 to 5 डिग्री। बिकॉज सी अगर टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, इसी तरीके से इमिशन जो इस टाइम पे करंट सिनेरियो में चल रहे हैं वो चलता रहेगा, तब क्या होगा, आपको पता है कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर इफ इंक्रीज, जितने भी आपके ग्लेशियर्स होंगे वो आपके सब मेल्ट हो जाएंगे आफ्टर हैविंग दैट पोलर आइस कैप्स, जितना भी हमारा है। इफ वी लूज दैट पोलर आइस कैप्स तो हमारे साथ में क्या हो जाएगा, वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा। मेनी ऑफ द आप कह सकते हो द कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी है वो आपके एनवायरमेंट में, जो आपकी नॉर्मल आपकी ट्रोपोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रोपोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ जाएगी तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हैवी गैस होती है, वो आपकी केवल ट्रोपोस्फेयर पे मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वो नहीं जाती है। तो जिसका लार्जेस्ट अमाउंट होता है वो आपके कहाँ पे होता है, आपके एनवायरमेंट में रहता है। तो अगर वो यहाँ पे उसका पोर्शन, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जस्ट 0.3% रहती है, ठीक है, 0.3% आपके एनवायरमेंट में है, तब वो इतनी है। अगर 0.3 से उसका जो रेशियो अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी हार्मफुल फॉर अस। तो आपको नाउ इफ यू make it if you need to write this answer into the more than 100 words, आपको 300 words में इसको और elaborate करना है, तब आपको क्या आप करना शुरू करेंगे, what are the benefits, ठीक है, what are the impacts on the human lives and the or the environment, वो आपको मेंशन कर देना है। देन द ग्रीन बिल्डिंग्स हैव अ स्मार्टर लाइटिंग सिस्टम होगा, क्या क्या चीजें फिर इनको बारीकी से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं, एलईडी, सीएफएल्स, ये सारी चीजें, कन्वेंशनल लैंप्स वगैरह हम यहाँ पे यूज करेंगे। टॉयलेट्स हमारे जितना भी वाटर होगा, टू अवॉइड द वाटर यूज बाय 100%, you need to save the water for that and मतलब वाटर सेव होगा कि आप जब वाटर यूज नहीं करोगे, इन स्पाइट ऑफ वाटर वो यू नीड टू डू द टिश्यू पेपर्स एंड ऑल। आपने देखा होगा बहुत जगह पे मॉल्स वगैरह में भी दे स्टार्टेड लाइक जो जेट शावर्स होते थे वो वहां पे वॉशरूम्स में आप रखने मना, मतलब दे आर नॉट यूजिंग दो जेट शावर्स, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर प्रोवाइडिंग द टिश्यू पेपर देयर। देन ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है विच आर लाइक हेल्पिंग टू मेंटेन दिस ग्रीन बिल्डिंग्स, तो दिस इज लाइक ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृहा। देन ग्रीन रेटिंग असेसमेंट, हैबिटेट असेसमेंट ये क्या करती है, किसके द्वारा ओन है, किसने इसको हेल्प आउट किया, हु आर द पीपल हु आर लाइक इन्वॉल्विंग इन दैट, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे कि भाई इन ग्रीन बिल्डिंग किसी को भी बोला जाए तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होंगे कि भाई इतना परसेंट एमिशन वो लेस करेगी, भाई वहां पे आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, डिकम्पोज सिस्टम होगा, वहां पे आपकी जितनी भी एफिशिएंसी आप देख रहे होगे, मोस्टली सोलर लाइट्स, विंड एनर्जी या वाटर आपका रीजनरेशन प्रोग्राम वगैरह इस टाइप के जो प्लांट्स होंगे वो सारी चीजें वहां पे मोस्टली यूज की जाएगी, सो दैट दे कैन कंजर्व द एनर्जी एंड दे कैन रिड्यूस द एमिशन देयर। देन लीडरशिप ऑफ इंजीन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी। देन लीडरशिप इन द एनवायरमेंट एनर्जी डिजाइन इंडिया, तो यहाँ पे लीड एक करके आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड द ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम, प्रूविंग प्रोवाइडिंग द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। Building or community was designed and built using the strategies
एम फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस अक्रॉस द मेट्रिसेस, कि भाई यहाँ पे आपकी क्या है, बेसिकली एक आपकी एक सर्टिफिकेशन यूनिट है जो सर्टिफाइड करती है भाई कौन कौन सी बिल्डिंग्स को या कौन कौन सी चीजों को हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर, ग्रीन बिल्डिंग्स के अंदर लेकर आ सकते हैं। देन अगेन आपकी थर्ड आप या फिर लास्ट आप कह सकते हो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दिस इज आल्सो ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज लाइक वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रीन एफिशिएंसी या फिर टू मेकिंग द एफिशिएंट बिल्डिंग्स, तो दैट इज अ वन। एंड लास्ट में आप इसका एक छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिए, कंक्लूजन दैट कि भाई वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम और ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से वी ऑल इम्प्लीमेंट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी, हाउ इट कैन मेक चेंज टू आवर लाइफ एंड टू द वर्ल्ड इवन, तो यू कैन प्रूव टू द ट्रू कैटलिस्ट, आई एम सो सॉरी, catalyst for addressing some of the world most pressing issues. So that's all for the topic of environment and science. Lastly, I have analyzed some of the question of the prelims they have asked. तो prelims में कुछ आप देख रहे हैं, तो अगर prelims की बात करी जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, they ask you the direct questions. In मेंस इवन अगर आंसर राइटिंग की हम बात करते हैं तो मेंस इवन दे आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लाइक अनलाइक द यूपीएससी, व्हाट द यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क, दे आस्क यू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसी में उसको बहुत तरीके से घुमा देते हैं, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। बट एमपीएससी का अगर आप लास्ट के पैटर्न देखेंगे 4-5 साल को अगर आप स्टडी करते हैं, देन व्हाट यू विल गोइंग टू सी कि एमपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन दी सेंस कि आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे क्या था, सपोज अगर साइक्लोन आता है तो उसका हायर प्रेशर इनसाइड होता है या फिर लोअर प्रेशर इनसाइड होता है, आई किधर बनती है, आउटसाइड बनती है कि नहीं बनती है, कौन कौन सा व्हाट काइंड ऑफ विंड सिस्टम इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द साइक्लोन, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू लाइक दिस। वो साइक्लोन पूछेगा, साइक्लोन में क्या पूछा गया भाई, दिस काइंड ऑफ निवार आपका जो साइक्लोन आया था कब आया था कहाँ आया था, ठीक है, विच कंट्री हैज गिवन द नेम टू द निवार साइक्लोन, this kind of a like direct question they're going to ask you. Similarly, I have taken some of the questions of the previous year one, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे है कि विच ऑफ द लाइक मेंस के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेंस के क्वेश्चंस आपके 3 पोर्शन में 3 टाइप के में आते हैं, कि जिसमें आपका 3 मार्क्स 6 मार्क्स और आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। देन अगर प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में आपको पता है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू इनकाउंटर इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ द सैटेलाइट, तो भाई कौन सा सैटेलाइट का इंस्टीट्यूट है, इन विच in the buccal cavity of a human being's digestion of which of the one following get started, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है आप बता दो, बस एक पॉइंट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज हाईएस्ट, ओपियम is which of the category of a medicine, so these are the direct question they are asked you in the prelims even. So that's all for today and thank you very much.